Hello everyone, how are you all? Welcome you all to my YouTube channel. I am Riddhi, and as I have said in my last video, my next video will be about my CUET study for 2025. So here I am back with this video, and in this video you will get to know about everything. What are my courses, what is my stream, and for which subject I am going to appear in CUET, what are the resources I follow, what are the books I have to study, from where I am giving the mock test, and from where I study, like where I watch video lectures. Do I have a paid batch? And without any further ado, let's get started. So the first question is how I got to know about CUET exam. When I passed out from my class 10th, so one of my relative told me you should do graduation from Central University after your class 12th. So in my class 11th, I started searching about how to get into Central universities for pursuing graduation. I got to know that there is an exam called CUET entrance examinations through which we can get any Central university. And in my class 11, I paid my full attention towards every information about CUET, and I was following every update that how things happened, and I gathered all the informations in my class 11th about CUET so that I will not have any problem in my class 12th when I'll be able to give my board exams. So that is it. This is how I got to know about CUET. So the second question is what stream I had in my class 12th. So I had humanities stream with history, geography, political science, Hindi and English subjects. And I chose humanities because I was interested in SST, and I'm so grateful to my parents that they also supported me. They didn't put any kind of pressure on me that you should have to take science. So the next question is what are the subjects which I have filled in my CUET form. So I have filled history, geography, political science with English language. And I know I have limited my opportunities. I can't get into JNU and BHU because I don't have general aptitude test. And the reason why I didn't took general aptitude test was अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है. There is only 1 month left, and I know that I haven't studied any kind of maths from 2 years because I had humanities stream. So it will take me a lot of time to study maths again because in general aptitude test we have to give the test of maths, I guess. और ये भी था कि अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेती तो मेरा पूरा का पूरा टाइम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रिपरेशन में ही लग जाता, और उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता. उसकी वजह से मैं अपने अदर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर नहीं कर पाती. और इंग्लिश लैंग्वेज में भी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक मेरी ग्रामर थोड़ी वीक है और वोकैबलरी वगैरह ये सब मुझे उतना पता नहीं है. सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट. दैट्स व्हाई आई डिडंट चूज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. And I'm only targeting for DU, so I know I have to give my best because I know that I don't have any other options, as well as to get admission in DU is a difficult task. I have to do hard work with smartness, and I'm going to give my best. And my fourth question is, do I have any paid batch? So the answer is no, I don't have any paid batch. I only study from YouTube. In my class 12th also I studied from YouTube. For CUET also I'm going to study from YouTube, and you also don't need any kind of batch to study for your CUET because I know everything. Like I know, you know, we all know that there are a lot of stuffs on YouTube for free which you can utilize for your CUET preparation, and they are very informative, and whatever the information you want, they have covered everything. I know you have potential, you can do it, and you also know that you don't need to buy any batch. The only problem we face is distractions. We get distracted by a lot of things. So I advise you to delete all your social media account, and I have also done it, like at the time of my boards and at the time of my CUET also. I have deleted my every social media account apart except YouTube because I study from there. And do delete that, and make sure to not watch the shorts in YouTube section because this is the problem we face, that if we have deleted any other social media for the sake of studying, we have YouTube, so we started scrolling shorts there. So don't do that, okay? And you just have to give your best because there is only 1 month left and you have to do it. So there is no any other chance. Control your mind, don't let your mind control you, and you have to give your best. You have to study from right now after seeing this video. If you haven't made any strategy, you don't have any plans right now, so take the help of my video and make your own strategy because this is something which is very best. Like strategy should be your according to you. So go make that and start studying from today. Abhi bhi late nahi hua hai, you can do it. Now the fifth question is what are the books I follow for my CUET preparation. So the only book you have to follow is NCERTs. There is no any other book which can replace NCERT. So make sure to follow NCERTs. And I know like abhi ज़्यादा time नहीं बचा है, we can't read every single line. So हर चैप्टर के पेजेस पे ब्लू बॉक्स में येलो बॉक्सेस में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं. आप सभी उनको पढ़ो क्योंकि I know like you have studied everything in your class 12, so you don't have to read every single line again. And time भी कम है तो you just have to study thoroughly and like do it. Like do read the boxes which they have given the books of every chapter, and वो जो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिया होता है उन सबको आप लोग पढ़ लो. एंड जो भी सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो भी सारे ब्लू बॉक्सेस में दिए हुए हैं वो सबको पढ़ लो. एंड आई फील लाइक वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर भी देख लो, उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी कर लो, और वीक में 2 मॉक टेस्ट और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो. सो दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. एंड
ये आपको हेल्प भी करेगा कि आपको कहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपका कौन सा पॉइंट वीक है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड आप उसको करेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने क्लास 12 से डिसाइड किया था ना मैं कोई बैच लूँगी और ना ही कोई बुक्स खरीदूंगी, बट जैसे जैसे पढ़ाई करते गए सो आई थॉट कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक तो लेना पड़ेगा। आई बॉट दिस बुक फ्रॉम आर 24/7 एंड आई बॉट द सिलेक्शन किट विदाउट इकोनॉमिक सब्जेक्ट एंड इसमें चैप्टर का समरी दिया हुआ है, एक माइंड मैप दिया हुआ है और हर पर्टिकुलर चैप्टर के ज्योग्राफी में 80 क्वेश्चन है हर पर्टिकुलर चैप्टर के, और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं हर पर्टिकुलर चैप्टर के। सो आई स्टडी फ्रॉम देयर एंड और उसमें उस बुक के लास्ट में PYQs भी दिए हुए हैं, तो आई डू PYQs फ्रॉम देयर। एंड जब मैंने वो बुक का सेक्शन परचेज़ किया था सिलेक्शन किट वाला, तो उसमें 2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट थे जो कि मेरे फ़ोन में अडा के ऐप में है। फिर उसमें ये जनरल टेस्ट का भी बुक मिला है। वैसे तो मैं जनरल टेस्ट लेने नहीं वाली थी, बट उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं जनरल टेस्ट की बुक को हटा सकूं, क्योंकि मैं जनरल टेस्ट नहीं लेने वाली थी, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं जनरल टेस्ट की बुक को हटाऊं, तो मुझे ये भी लेना पड़ा। तो ह्यूमैनिटीज़ की बुक के साथ मुझे ये वाली बुक भी रिसीव हुई है। बट यहाँ अब क्या कर सकते हैं, मे बी कोई अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर मैं प्रिपेयर करूँ तो मुझे इन सारी बुक्स को पढ़ने का काम पड़े, बट अभी के लिए तो दे आर नॉट यूजफुल फॉर मी राइट नाउ। एंड हियर आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनीवन। मैंने बुक लेने से पहले PW के स्टोर पे भी देखा था, बट तब तक CVT का सिलेबस नहीं आया था 2025 वाला, और मैंने वहाँ से देखा फिजिक्स वाला पे, तो उसमें था कि जो रिलेटेड चैप्टर्स थे उनके क्वेश्चंस नहीं दिए हुए थे, तो इसलिए मैंने फिजिक्स वाला से नहीं लिया। और मैंने आर 24/7 में देखा, तो वहाँ पे मतलब जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनके भी सारे क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए थे उस पर्टिकुलर बुक में, तो मैंने अड्डा वालों का ही लिया था। और मैंने दिवाली के टाइम पे लिया था बुक्स को, जब डिस्काउंट चल रहा था तब। और अभी जब CVT का सिलेबस आया 2025 वाला, तो उसमें ये दिया हुआ है कि जो NCERT में चैप्टर्स रिलेटेड थे आपके CBSE बोर्ड में जो चैप्टर्स नहीं आ रहे थे, वो चैप्टर्स अभी CVT में भी नहीं आ रहे हैं, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। वी डोंट हैव टू स्टडी दोज चैप्टर्स। नाउ द 6th क्वेश्चन इज व्हाट इज माय स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर 3 सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। फॉर इंग्लिश लैंग्वेज मैंने क्लास 12th में DSR सर से कुछ पढ़ाई किया था, कुछ वीडियो देखे थे DSR सर के, कुछ ग्रामर पोर्शंस के, तो आई एम नॉट गोना स्टडी देम अगेन। आई एम गोइंग टू सॉल्व ओनली क्वेश्चंस ऑफ दोज चैप्टर्स and I'll revise them, whatever the notes I have made, so I'll revise that only. And the chapters which I haven't studied in my class 12th in grammar portion, so I'm going to study those chapters from Rubaika ma'am. She teaches English grammar and she teaches really well. I really like her videos. They are very informative and she teaches with full clarity, and I'm following her Manjil 4.0 and her every vocab series, reading comprehension series and rearrangement series and everything of her I'm following. तो मैंने जो भी चैप्टर्स नहीं पढ़ा है मैं उनको करती हूँ, करने के बाद उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ, और वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट तो दे ही दो आप इंग्लिश के, और मैं भी मतलब वीक में 2 या 3 इंग्लिश के मॉक टेस्ट दूंगी, और क्योंकि वो उससे कंसेप्ट क्लैरिटी होता है, पूरा विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे सब कुछ आएगा, या फिर थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। तो उसके लिए यू हैव टू सॉल्व 3 मॉक टेस्ट एवरी वीक। एंड फॉर द वोकेबलरी पार्ट आई फील लाइक जितनी बार आप देखोगे उसको, बार बार विजिट करोगे तो वो जल्दी याद हो जाएंगी। सो इन दिस वे आई एम गोइंग टू स्टडी द वोकेबलरीज बिकॉज दिस वे रियली हेल्प मी टू लर्न द वोकेबलरी, सो आई एम फॉलोइंग दैट वे। और मैं वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट इन सबको मिस नहीं करने वाली हूँ, मैं इन सबका प्रैक्टिस डेली करने वाली हूँ। एंड फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वी ऑल नो कि बस 1 ही महीना बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब NCERT की हर एक लाइन रीड करने बैठो तो मुझे तो बहुत टाइम लगता है, लाइक एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 1 आवर तो लग ही जाएगा, एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम। सो आई एम गोइंग टू स्टडी लाइक जो भी सारे चैप्टर्स के हर पेज पे वो जो रेड बॉक्सेस में, ब्लू बॉक्सेस में दिए होते हैं मैं उन सबको पढ़ने वाली हूँ, और वो जो हर चैप्टर के बाद में जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिए होते हैं मैं उन सबको पढ़ने वाली हूँ। एंड इफ़ यू फील लाइक यू कैन स्टडी एवरी सिंगल लाइन ऑफ NCERT, सो यू कैन स्टडी दैट एज वेल। बिकॉज देखो मैंने क्लास 12th में सारे सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ाई किया था, और मुझे कंसेप्ट की क्लैरिटी तो है, मुझे पता है कि हर चैप्टर में क्या है, किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो मुझे पता है कि मुझे अभी किस चीज़ पे फोकस करना है। लाइक जो मैंने नहीं पढ़ा है क्लास 12th में, तो मैंने ब्लू बॉक्सेस को नेगलेक्ट किया था, और वो जो हर चैप्टर के बाद में वो जो डेट्स दिए होते थे उनको, तो मैं अभी उन सबको पढ़ने वाली हूँ। और जो भी पर चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगे, डायरेक्शंस आ जाएंगे फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट लाइक दैट, तो मैं उन सबको करने वाली हूँ। क्योंकि भाई CVT में इतने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, NTA कोई हलवा क्वेश्चन तो देगा नहीं कि ओ जैसे हमारे बोर्ड्स में आते थे थोड़े बहुत ईजी क्वेश्चंस, लाइक एक लाइन में क्वेश्चन दे दिया, 4 MCQ ऑप्शंस। सो आई बिलीव कि वो लोग आसान क्वेश्चन तो देने नहीं वाले हैं जिनका आंसर आप तुरंत पढ़ के तुरंत कर लो। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन तो वो लोग देंगे ही, नो मैटर आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वी ऑल हैव टू स्टडी। वी कांट थिंक लाइक दैट ओ दे आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम सो दे डोंट हैव टू स्टडी, वी ऑल्सो हैव टू स्टडी यार। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू लर्न एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो make sure to study each and everything very clearly, and you know what are the portions you have completed from your book and what are the topic you have problem in, so you have to work on that and study that because अभी टाइम कम है, and बार बार I'm telling you कि टाइम कम है, so that आप उन सबको टॉपिक्स को, सिलेबस को कवर करो जो आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। आप सोचते हो कि वो पॉइंट्स आपके वीक हैं, और ये पता कैसे चलेगा? डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, डेली मॉक्स देने से ये सब कुछ पता चलेगा आपको, तो डू दैट। तो मैंने जब अपना 12th का सारा सिलेबस कंप्लीट किया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट किया था, और मैंने कुछ चैप्टर्स के नोट्स भी बनाए थे A4 साइज पेपर पे। तो उन चैप्टर को छोड़ के बाकी जिन चैप्टर्स का मैंने नोट्स नहीं बनाया है, 1 शॉट नोट्स, सिंपल सा नोट्स, सो
तो मैं उन चैप्टर के नोट्स बनाऊंगी जो अभी मैं वीडियो लेक्चर देखूंगी, वो मैं सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर देखूंगी वन शॉट वाले, बट मैं उन्हीं चैप्टर्स के नोट्स बनाऊंगी जो चैप्टर्स मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं फर्स्ट टाइम रिविजन करने के बाद। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं रोज़ वीडियो लेक्चर देखती हूँ वन शॉट वाले, वो लाइक जो चैप्टर मुझे उस दिन पढ़ना होता है उसके वन शॉट वीडियो लेक्चर देखती हूँ। उसके बाद से मैं उनके क्वेश्चंस करती हूँ और जो समरी टाइप के जो बुक में दिया हुआ होता है, जो अड्डा का मैंने बुक लिया उसमें समरी टाइप का सारे चैप्टर्स के दिए हैं, तो मैं उससे रिवाइज करती हूँ एज अ नोट्स, और मैं अपने नोट्स से भी रिवाइज करती हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती हूँ। अड्डा वाले बुक में जो मैंने बुक परचेज किया है, तो उसमें हर चैप्टर के बाद 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती हूँ और फिर उनको करेक्ट करती हूँ कि मेरा कहाँ पे गलत हुआ है, कहाँ पे सही हुआ है, कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, कितने टाइम में मैंने किया है। और अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं वीक में 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर ही लूँगी पर सब्जेक्ट के, और बाकी तो मैं रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रही हूँ अपना ये चैप्टर फिनिश करने के बाद। एंड येस, मेक्स यू टू लर्न दोज ब्लू बॉक्सेस एंड इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम योर बुक of every chapter which they have given in NCERTs. and yes, रिवीजन करना मत भूल जाना, because this is something which is very 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 important, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो करते हैं बट एंड में हम लोग रिवीजन नहीं करते, जिसकी वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो मेक श्योर टू रिवाइज एवरीथिंग पर वीक वट एवर यू हैव स्टडीड। सो यू हैव स्टडीड एवरीथिंग टिल मंडे टू सैटरडे, सो कीप संडे फॉर रिवाइजिंग एवरीथिंग। और आप अगर लाइक हर दिन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद एट द एंड आप रिवाइज कर पाते हो तो डू दैट एज वेल। इन अ नटसेल, what are the things important? Okay, so first we have to do one short video lecture. We have to study blue boxes from NCERTs and those important dates which they have given in NCERT book. And the third thing is we have to do lot of question practice. We have to do mock test, and हमें ये भी करना है लाइक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है, रिवीजन भी करना है, रिवीजन मिस मत करना, कभी भी मत करना। सो दीज ऑल आर माई स्ट्रैटेजी फॉर CUET 2025 एंड आई प्रिपेयर इन दिस वे। मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको कोई दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ, मैं जो फॉलो करती हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लाइक अगर आप अपना 100% देते हो और एट द एंड ऑफ द डे बिफोर गोइंग टू बेड यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्क यू हैव डन, देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक CUET examinations in just one attempt. And yes, don't be so much stressed about CUET. It is just an exam and we can do it by giving our 100%. So अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो और टेंशन बिल्कुल भी मत लो, खूब सारा भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड tell me, have you started your CUET preparation or still you haven't started? And if you haven't started yet, then जाओ कॉपी पेन उठाओ, अभी स्ट्रैटेजी बनाओ, आज से पढ़ना स्टार्ट करो, and you don't have to worry about it. You can do it. The only thing you have to do is to give your 100%. So that is it for this video. See you in my next video, and tell me that do you guys want my daily update or should I just post weekly updates? And yes guys, here is a disclaimer. अगर मैं आप सभी को ये सब चीज़ें बता रही हूँ तो बहुत लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं शायद टॉपर हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। सो नो, आई एम नॉट अ टॉपर एंड डोंट कंसिडर मी एज अ टॉपर, वट एवर द थिंग्स आई एम फॉलोइंग। सो आई थॉट इट टू शेयर इट विथ यू ऑल। क्या पता आप सभी का भी कुछ हेल्प हो जाए इससे, तो इसलिए मैंने शेयर किया। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET।